اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام روزمرہ زندگی کے لطف میں ہمارے ساتھ اکٹھا ہونے کے لیے شکریہ، اور میرا یہ ایمان ہے کہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں خوشی کو لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج ہم سب مل کر فراغ دلی پر سیکھیں گے۔ جانتے ہیں جب آپ زندگی میں لینے والے نہیں بلکہ دینے والے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ لکھا ہے دینا لینے سے مبارک ہے، اور میں ہر طرح سے دینے کی بات کر رہی ہوں، کسی کی تعریف سے لے کر حوصلہ افزائی تک، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بھرنے سے لے کر کسی کی مالی امداد تک، خدا کی بادشاہی کی خاطر دینے تک، تاکہ ہم کلام کی خدمت کو جاری رکھ سکیں۔ ہمیں دینے والا ذہن رکھنے کی ضرورت ہے۔ لینے کے لیے نہ جئیں بلکہ دینے کے لیے بھی جئیں، اور اگر آپ فراغ دل شخص ہیں تو آپ یقیناً خوشحال ہوں گے۔ اگر آپ فراغ دل ہیں تو آپ ایک طاقتور اور زوراور ہوں گے۔ لیکن میں شروعات میں اپنی زندگی سے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گی۔ میرے ہاتھ میں ایک رائن اسٹون بریسلٹ ہے۔ اب میں جانتی ہوں کہ یقیناً آپ اسے واضح طور پر نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہاں اس کا کلپ ہے جس سے اس کو باندھتے ہیں اور بو بن جاتی ہے، اور کسی نے مجھے یہ دیا اور مجھے یہ بہت ہی پیارا لگا۔ مجھے یہ نہایت پسند آیا۔ کیا آپ کے پاس بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ عزیز سمجھتے ہیں؟ اکثر میں اسے اپنی کانفرنس میں پہنا کرتی جب بھی موقع ملتا۔ یہ کہانی تقریباً 20 سال پرانی ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ، لیکن میں نے اس سے ایک بہت بڑا سبق سیکھا، اور ہماری پریسٹیج کی ٹیم کی گانے والی لڑکیوں میں سے ایک نے اس کی تعریف کی کہ یہ بریسلٹ بہت ہی پیارا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ بریسلٹ میں اسے دے دوں۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ کیا کبھی ایسا وقت آیا کہ کچھ آپ کو بہت زیادہ عزیز تھا اور آپ اسے بہت زیادہ چاہتے تھے، اور آپ کو محسوس ہوا کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے دے دیں؟ وہ چاہتا ہے آپ اسے بطور برکت کسی اور کے لیے استعمال کریں۔ جانتے ہیں، اگر کچھ ایسا ہو جس سے ہمیں زیادہ لگاؤ نہیں، تب ہمیں یہ ناگوار نہیں گزرتا، لیکن یہ تب مشکل ہو جاتا ہے جب یہ آپ کی کسی بہت ہی عزیز اور پیاری چیز کا معاملہ ہو۔ جانتے ہیں، میں نے خدا کی فرما برداری کرنے میں بہت دیر کی، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور میں بہانے بناتی رہی کہ پتہ نہیں خدا اس کی جلد کی رنگت پہ چاندی اچھی بھی لگے گی یا نہیں، اور وہ خاصی دبلی تھی، اور میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی کلائی سے اتر کر گر جائے اور اس کے ہاتھ میں پورا نہیں آئے گا، اور بالآخر میں نے سوچا کہ میں خدا کی بات مان لوں اور کر دوں۔ میں نے کیا اور میں نے اسے دے دیا، اور وہ بہت شکر گزار ہوئی کہ آپ کتنی اچھی ہیں، آپ کتنی فراغ دل ہیں، اور ایسی ہی سب باتیں جو ہمارا بدن سننا پسند کرتا ہے۔ میں نے پوری تسلی سے اسے بتایا کہ دیکھو، یہ دینا میرے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اسے تمہیں دے ڈالوں، اور جب بھی وہ پہنتی تو میں باتوں باتوں میں اکثر اسے جتاتی کہ میں اسے یاد کرتی ہوں۔ میں واقعی اسے یہ اشارہ دے رہی تھی کہ وہ اسے واپس کر دے، جو آخر کار اس نے کر دیا، اور ایک دن وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ میں اسے آپ کو واپس کر دوں۔ اس دن میں نے اپنے اندر ایک شرمندگی سی محسوس کی، کیونکہ شاید میں نے اسے افسوس دلایا کہ اس نے اسے کیوں لیا، جبکہ اب وہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں اسے گھر لے آئی، دراز میں رکھا۔ یہ تقریباً 20 سال پرانی بات ہے۔ جانتے ہیں، میں نے تب سے لے کر آج تک کبھی بھی اس بریسلٹ کو پھر نہیں پہنا، اور جب تھوڑا عرصہ، یہی کوئی 1 سال گزر گیا، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجھے اس کا کوئی خاص شوق نہیں رہا۔ میں نے خداوند سے کہا، اب یہ کیا ہے؟ مجھے ذرا سمجھا، مجھے یہ بہت پسند ہے، میں تیری فرما برداری کر کے دے رہی تھی، تو نے اسے مجھے واپس کرنے کو کہا، اور اب یہ مجھے اچھا بھی نہیں لگتا۔ اور خداوند نے مجھے ایک بڑا سبق سکھایا۔ اس نے کہا، جب میں تجھے کچھ دینے کو کہتا ہوں تو اگر اس کے باوجود تو اسے اپنے پاس رکھے تو اس پر مسا نہیں رہے گا۔ یہی لفظ اس نے استعمال کیا، جس کا مطلب ہے تمہارے لیے بابرکت ہونے کی قدرت۔ ذرا غور کریں کہ میں نے کیا کہا، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ اپنی زندگی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس ہے،
उससे लुत्फ अंदोज होना चाहते तो खुदा आपसे कुछ चीजें, कुछ पैसे बतौर कुर्बानी कभी कभार जुदा हो जाने का तकाजा करेगा। और अगर आप कुछ ऐसा रखते हैं जो खुदा आपको देने को कहता है, तो दुश्मन किसी न किसी तरीके से उसे आपसे चुरा लेगा या आप कभी उससे लुत्फ अंदोज नहीं हो सकेंगे। और ये मेरे सीखने के लिए बहुत अच्छा सबक था और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी अच्छा ही होगा। बतौर मसीही दूसरों को देना हमारे लिए अहम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा देने वाला है, वो कभी कंजूसी से नहीं बल्कि इफरात से देता है। वो कसरत से देने वाला खुदा है, तंगहाली से देने वाला नहीं। और हम उसकी छवि पर बनाए गए हैं। बतौर ईमानदार उसकी रूह हम में रहती है और इसीलिए हम सबको भी दूसरों को देने वाला होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कभी कभार भले ही आप देने वाले ही क्यों ना हो, कम से कम मैं अपनी जिंदगी में देखती हूँ कि मुझे फिर से अहद करने की जरूरत है। ये बात नहीं कि मैंने देना छोड़ दिया है, लेकिन मुझे ये अहद करना है कि मैं देने में बढ़ूंगी। आपको पता है दूसरा करंथियों 8:7 पौलुस करंथियों की कलीसिया से कहता है, देखो इस खैरात के काम में भी सबकत ले जाओ। जानते हैं सबकत ले जाने का मतलब है जहां तक मुमकिन हो करना। मैं खैरात की एक खास हद तक महदूद नहीं रहना चाहती कि बस उसके बाद खुद ही अपनी पीठ थपथपा कर कहूं कि क्या बात है, मैंने तो बहुत खैरात की है। मेरा ख्याल है हमें एक मकसद रखना चाहिए कि हम खैरात करने में हमेशा बढ़ते रहेंगे। और आप जानते हैं अक्सर ही मैं ये कहती हूं और पता नहीं आप इससे इत्तेफाक करेंगे या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम वाकई खैरात करते हैं जब तक हम उसे महसूस किसी हद तक नहीं करते। मसलन अगर मेरी अलमारी में एक कोट लटका हुआ है और मैंने 5 साल तक उसे पहना है और अब 2 साल से मैंने उसे पहनना छोड़ दिया और मैं वो किसी को दे देती हूँ, तो मुझे कुछ महसूस नहीं होगा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे वैसे भी उसका कोई फायदा नहीं था। लेकिन चंद साल पहले मैंने एक कोट खरीदा जिसका गला बहुत बड़ा था, जो मुझे बहुत पसंद था। मुझे ना सिर्फ पसंद था बल्कि बहुत ज्यादा पसंद था। और जब भी मैं उसे पहनती मुझे बहुत से तारीफी कलमात सुनने को मिलते। वो स्टोर में था और मेरी जानने वाली खातून ने उसकी तारीफ की और कहा कि मैंने ये कहाँ से लिया है, क्योंकि वो भी ऐसा ही खरीदना चाहती है और उसे वो बहुत पसंद है। मैं घर आई और मैं ये बात अंदर से जानती थी। खुदा को आपके कान के पास आकर चिल्लाने की जरूरत नहीं। आप में से कितने लोग अंदर से जान जाते हैं। और मुझे ये बात महसूस हो गई कि मैं वो उसे दे दूं। अब मैं चाहती नहीं थी कि मैं उसे वो दे दूं, मैं उसे रखना चाहती थी। देखें, खुदा हमेशा वो काम करने की इजाजत नहीं देता जो हम करना चाहते हैं। देखें, ब्रेसलेट वाले वाक़े को 20 साल हो गए हैं, सो मैं जानती थी कि मुझे खुदा ने जो कहा वो करना है। और जैसे ही मैंने उसे वो दिया, यकीनन वो खुश हुई और जहां से मैंने खरीदा था मैंने वहां कॉल की और दोबारा खरीदना चाहा। जानते हैं क्या हुआ? वहां अब ऐसा कोई और कोट नहीं था। मेरे लिए असल में देने का मतलब ये था, मुझे इसका एहसास हुआ। इसलिए मैं हमेशा अपने अहद को मजबूत और तरोताजा करना चाहती हूँ कि मैं जिंदगी में हमेशा देने वाली बनूं, ना कि सिर्फ लेने वाली। और कभी कभार मैं अपनी खैरात में इजाफा करना चाहती हूँ, या कभी कभार मैं अपनी खैरात को बहुत ही खास बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि क्या आप देने की ताकत से वाकिफ हैं या नहीं। जब हम खुद गर्ज होते हैं हमारी जिंदगियां छोटी और उमूमन नाखुश होती हैं, और खुद गर्जी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका फराग दिल होना है। या आप यूं भी कह सकते हैं, फराग दिली खुद गर्जी के जहर की एक बहुत ही बाअसर दवा है। लालच से लड़ने का बेहतरीन तरीका फराग दिली है। फराग दिली एक ऐसा हथियार है जो खुदा ने हमें दिया है। यह दरअसल जिंदगी में दुश्मन से लड़ने का एक तरीका है जो कि हमारी खुशी में इजाफा करता है। और मैं आपको इसी वक्त बता सकती हूँ कि शैतान फराग दिली से बहुत ही नफरत करता है। पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। अब देखें, दूसरे लफ्जों में खुदा हमसे उस बर्ताव की तवक्को करता है जैसा उसने किया।
خدا فراغ دل ہے اور فراغ دل ہونا خدا کی مانند ہونا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ بھلائی کے کام ہو رہے ہیں اور میرے وسیلہ سے بھلائی کے کام ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، خدا آپ کو معاف کرتا ہے اور یہ توقع کرتا ہے کہ آپ بھی دوسروں کو معاف کریں، اور یقیناً خدا بھی آپ کو دوسروں کو معاف کرنے کے لیے صبر عطا کرتا ہے، اور چونکہ خدا آپ کے ساتھ صبر سے پیش آتا ہے سو وہ آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آئیں۔ سب کچھ جو خدا ہمیں دیتا ہے، ہمیں بس اسے اکٹھا ہی نہیں کرنا کہ وہ ایک تالاب کے ٹھہرے ہوئے بدبودار پانی کی مانند ہو جائے، بلکہ وہ آپ کے لیے اور آپ کے وسیلے بہے۔ اور اسی لیے جب بھی آپ کسی چیز کو اپنے وسیلے بہنے کی اجازت دیتے ہیں تو آپ خدا کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ اور کر سکے، اور پھر وہ بہاؤ ہماری زندگی میں کبھی رکتا نہیں۔ سو کیا آپ نے حال ہی میں اپنی خیرات کے متعلق سوچا ہے؟ کیا آپ نے خود سے بھی یہ پوچھا ہے کہ کیا میں دینے میں سرگرم ہوں؟ کیا میں اتنا کر رہی ہوں جتنا کر سکتی ہوں؟ اور میرے آس پاس اور بھی لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، جن کی ضرورتیں میں آسانی سے پوری کر سکتی ہوں، لیکن میں نے ایسا کرنے کا اب تک نہیں سوچا، اور نہ میں ایسا کرنا چاہتی ہوں۔ غلطیوں 6:7 میں لکھا ہے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹوں میں اڑایا نہیں جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ مجھے اس بونے اور کاٹنے کے سارے قانون سے بڑا لگاؤ ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زندگی پر میرا اختیار اور پیمانہ بڑھ گیا ہے۔ جانتے ہیں، اگر میں لوگوں سے دوستانہ مراسم بڑھانا چاہوں تو میں ان سے زیادہ دوستانہ ہونے کی شروعات کر کے ایک بیج کو بو سکتی ہوں۔ بائبل لوکا 6:38 میں کہتی ہے، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ برکتیں آپ کے پلے میں ڈالی جائیں؟ میں چاہتی ہوں، اور انہیں پانے کا طریقہ یہ ہے کہ دینے والا بنا جائے۔ میری خواہش ہے کہ میں فراغ دل ہونے میں ترقی کروں، اور مجھے امید ہے کہ میرے وسیلے آپ کے اندر بھی آج اس کا جنم ہو رہا ہے۔ میں ہمیشہ دینے سے خوش ہوتی ہوں۔ دینا ان نعمتوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق بائبل بتاتی ہے کہ یہ خدمت کی نعمتیں ہیں جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے۔ مجھے ہمیشہ سے دینے میں لطف آتا ہے، یہاں تک کہ بچپن سے ہی، لیکن میں یہ تسلی کرنا چاہتی ہوں کہ جتنے لوگوں کے لیے جہاں تک میں کر سکتی ہوں میں کروں۔ ملاکی 3:10 آیت میں ایک بڑا حیران کن وعدہ ہے جو نہایت قابل غور ہے، اور خدا کہتا ہے، پوری دایا کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں رکھتے کہ یہ تمہاری زندگی میں کام آئے گا تو صرف آزما کر دیکھو، اور جو میں کروں گا وہ تم دیکھ لو گے۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں بہت سی ضروریات ہیں، لیکن آپ میں سے کچھ تو شاید کچھ بھی نہیں دے رہے، یا پھر ایسا ہے کہ جتنا کم ہو سکے اتنا دے رہے ہیں۔ آپ اپنے دینے کے مسئلے کے لیے دعا نہیں کرتے۔ شاید جب آپ چرچ جاتے ہیں تب آپ کچھ پیسے اس ٹوکری میں ڈال آتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اسے آپ کے آگے کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں فراغ دلی سے دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا فراغ دل ہے اور ہم اس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر ہم دیں گے تو ہم کھو دیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ تم خدا سے بڑھ کر نہیں دے سکتے۔ ان حوالہ جات کو سنیں، 2 کرنتھیوں 9:6-11۔ لیکن بات یہ ہے، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ اور جو فراغ دلی سے بوتا ہے تاکہ اس سے کوئی برکت پائے، ہم اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں اس کے بدلے کچھ ملے، بلکہ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ برکت پائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگ برکتیں پائیں۔ میں خوش ہوتی ہوں جب خدا مجھے دوسروں کی زندگی میں برکت انڈیلنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے میں کیوں خوش ہوں؟ کیونکہ میں نے جانا ہے کہ فراغ دل لوگ خوشحال ہوتے ہیں، اور میں نے زندگی میں اتنے سال اداسی میں گزارے ہیں کہ اب مزید اداس نہیں رہنا چاہتی، بلکہ میں خوش ہونا چاہتی ہوں۔ اور جو فراغ دلی سے بوتا ہے تاکہ اس سے کوئی برکت پائے، وہ فراغ دلی سے اور بابرکت ہو کر کاٹے گا۔ آپ میں سے ہر ایک کو وہ سب دے دینا چاہیے جو آپ نے اپنے دل میں ٹھہرایا۔ سو ایسا نہ کریں کہ بس فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں اور کبھی اس پر عمل نہ کریں۔ جو کچھ خدا آپ کے دل میں ڈالتا ہے اس کام کو انجام دیں، اسے کرنے میں سستی نہ دکھائیں، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔
एम्पलीफाइड बाइबल में लिखा है, खुशी से, मुसरत से और फौरन देने वाले को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल और हर तरह की मेहरबानी कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और तुम हर तरह के हालात और जरूरत में खुद मुख्तार हो, और तुम्हारे पास इतना हो कि किसी की मदद और सहारे की जरूरत न पड़े, और हर एक नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। वाओ! चुनाचा लिखा है कि उसने बिखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। बस जो बोने वाले के लिए बीज, अब जरा इस हिस्से को सुने, और खाने वाले के लिए रोटी बहम पहुंचाता है। खुदा हमें चीजें और पैसा खैरात करने के लिए देता है और हमारी जरूरत के लिए भी देता है। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। आप जब भी देंगे, खुदा उसे लौटाएगा, और जो वो आपको लौटाता है उसका एक हिस्सा बीज है, ताकि आप उसे फिर बो सकें, क्योंकि फसल काटने का एक ही तरीका है। आप तब तक कटाई नहीं कर सकते जब तक बीज ना बोएं। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें अपनी जिंदगी में अपनी रोजमर्रा की आदत बनाने की जरूरत है, और अगर हम हमेशा देते रहेंगे तो हम हर तरह से ही बरकत पाएंगे, ताकि आप हर मौके पर फरागदिली का मुजाहरा कर सकें। ओ, हर मौके पर फरागदिली, और हमारे वसीले से आपकी फरागदिली का नतीजा खुदा की शुक्रगुजारी होगा। देखें, ये निहायत दिलचस्प हिस्सा है। मैंने किसी को फूल भेजे और वो आज उन्हें मिले। वो एक मसीही औरत है और उसने फौरन ही मुझे शुक्रिया का पैगाम भेजा। मैं जानती हूँ कि उसने खुदा का शुक्रिया भी अदा किया होगा, क्योंकि शायद आज उसे थोड़ी हौसला अफजाई की जरूरत है, और उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका वो सामना कर रही है। कभी कभार जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो इससे पता चलता है कि वो हमें अजीज रखते हैं। इससे खुदा जाहिर करता है कि वो हमसे मोहब्बत रखता है, क्योंकि खुदा लोगों को इस्तेमाल करता है। आप किसी की हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आप आज किसी को ये पैगाम भेज सकते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि तुम मेरी जिंदगी में अहम हो। आप ये पैगाम भेज सकते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि हर वो काम जो तुम मेरे लिए करते हो, मैं उसकी कदर करती हूँ। आपको पता है, जब मैं औरों की बरकत के बारे में सोचती हूँ तो मैं निहायत खुश होती हूँ, और मेरा ख्याल है कि खुदा के मसा का ताल्लुक फरागदिल होने से भी है। आप कहेंगे, मसा क्या होता है? आज के दौर में ये लफ्ज इतना सुनने को नहीं मिलता जितना कि मैं चाहती हूँ कि हम सुने। एक वक्त था कि जब मसा पर बहुत सारी तालीम दी जाती थी, और आपको पता है, यसू मसा किया हुआ कहलाया। दाऊद बादशाह खुदा का मसा किया हुआ कहलाया। मसा का मतलब खुदा की हुजूरी और उसकी कुदरत है। जब आपको किसी काम को करने के लिए खास तौर पर मसा किया जाता है, मुझे भी मसा किया गया कि खुदा के कलाम की तालीम दूं। इसका मतलब है मैं ये कर सकती हूँ और लायक तौर पर कर सकती हूँ, और खुदा ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं ये कर सकूं। और मेरा ख्याल है कि जब भी मैं दूसरों के लिए ज्यादा फरागदिल होती हूँ तो इसे करने के लिए मसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जब आप देते हैं तो आप कुछ खोते नहीं, बल्कि खुद को जिंदगी में ज्यादा बड़ी बरकत के लिए तैयार करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपने आखिरी बार कब किसी के लिए कुछ किया सिवाय चर्च के अंदर अपना हदिया डालने के? आपका क्या ख्याल है कि अगर आप ये अहद करें कि आप रोजाना 3 चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आएंगे, जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो वो आपसे खुश होते हैं, और अगर आप तोहफा देते हैं तो वो इससे भी खुश होते हैं। कैसा हो अगर हर मसीही ये फैसला कर ले कि मैं रोजाना 3 चेहरों के मुस्कुराने की वजह बनूंगी, तो हमारे इर्द गिर्द खुश लोगों की तादाद कई गुना बढ़ जाएगी। मत्ती 6 में लिखा है, जो हम पोशीदगी में करते हैं खुदा हमें इसका अजर सरेआम देगा। लिखा है, पस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों में और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हमें महज इस गर्ज से नहीं देना कि हमारी तारीफ हो या लोग देखें या हमारा बड़ा नाम हो। हमें इसे खुदावंद के लिए करना है, क्योंकि हमारा ईमान है कि ये एक कानून है और हम इसे दूसरों की बरकत पाने की गर्ज से करते हैं। और जब हम देते हैं, अगर इन 2 बातों की गर्ज से दें कि खुदा के लिए और किसी की बरकत के लिए, तो खुदा हमेशा आपको उससे बढ़कर अता करेगा जो आपने दिया। आप कहेंगे, देखें मैं नहीं जानती कि क्या करूं। जानते हैं, आप अपने शहर में किसी ऐसी तंजीम से राब्ता कर सकते हैं जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं।
आप कह सकते हैं कि आप हर हफ्ते 4 घंटे दूसरों के लिए निकालेंगे। अगर ये ज्यादा है तो शुरुआत में 1 महीने से आगाज करें। निकल कर कुछ और लोगों की मदद करें। निकलें और देखें कि कुछ लोगों के पास कितना थोड़ा है, और फिर जो आपके पास है उसके लिए और शुक्रगुजार होंगे। मेरा ख्याल है हम कभी कभार अपनी बरकतों को लेकर घर बैठ जाते हैं और बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं, और हम चिड़चिड़े हो सकते हैं। और आपको पता है, हम खुदा से कुछ मांगने के बाद शिकायत भी कर सकते हैं कि अब हमें इसकी देखभाल करनी पड़ रही है। दूसरों की मदद करना अच्छा है, और हम ये रोजाना की बुनियाद पर करते हैं और उन जगहों की तलाश में रहते हैं जहाँ दे सकें। बिलाशुबा हम पूरी दुनिया में मिशन के कामों में भी पूरे तौर पर शामिल हैं और इसमें शामिल रहना चाहते हैं। और क्रिसमस के सीजन में हम शहर की मुख्तलिफ तंजीमों में कॉल करते हैं ताकि देखें कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। और अगर वो दयानतदार हो कि वो पैसा जाया नहीं कर रहे, तो हम उनको इजाफी पैसा भेजते हैं ताकि उनके पास लोगों को खिलाने को पैसा रहे। जानते हैं, छुट्टियों में मदद की गर्ज से लोग ऐसी तंजीमों का रुख ज्यादा करते हैं। मेरा ईमान है कि फराग दिली का ताल्लुक दुआ के जवाब से भी है। और आप कहेंगे, क्या आप अपनी दुआओं का जवाब खरीद नहीं सकते? अब सुनिए जो अमाल 10:2 में है। सुने, एक दीनदार शख्स था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात दिया करता था और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। अब देखें, वो गैर कौम से था, वो यहूदी नहीं था, लेकिन वो खुदा से डरता था और वो खैरात करने वाला था और दुआ करने वाला था। खैरात करने और दुआ करने वाला। सिर्फ दुआ करने वाले ना बने, देने वाले और दुआ करने वाले बने। अमाल उसी बाब की 31वीं आयत में लिखा है, ए करनीलियस, खुदा ने कहा, ए करनीलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हुजूर याद हुई, इसीलिए वो तेरी मदद को आएगा। वाह, क्या बात है। मैं इसे फिर से पढ़ती हूँ। करनीलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हुजूर याद हुई, इसलिए वो तेरी मदद को आएगा। वाह, क्या बात है जी। हमारी नजरें जो हम दाहिने हाथ से देते हैं खुदा के हुजूर यादगार के तौर पर रहती है। खुदा कभी उन्हें नहीं भूलता। बाइबल में मेरे पसंदीदा हवालाजात में से एक गलतियों 6:10 है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसमें से कुछ पाएंगे। सो हमारे पास बतौर ईमानदार मौका है। जी हाँ, आप कितने मौकों को खो रहे हैं। कितने ही मौके खुदा आपके सामने रखता है, लेकिन आप उन पर तवज्जो नहीं दे रहे। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आप इस पर तवज्जो नहीं दे रहे या इसको समझ नहीं पा रहे कि आप भी वो शख्स हो सकते हैं जिसे खुदा किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा ने एक बार मेरे दिल में बात डाली कि मैं उससे लोगों के लिए कुछ करने की दरख्वास्त ना करूं जो मैं कर सकती हूँ और कर नहीं रही। ओहो, ये तो सच्चाई है। बस जहां तक मौका मिले, लिखा है, सबके साथ नेकी करें। सबके ही साथ, ना सिर्फ उनकी मदद करें बल्कि वो भी करें जिससे उनकी रूहानी फलाह बहबूद हो सके, और खास कर अहले ईमान के साथ नेकी करें जो नए सिरे से पैदा हुए हैं। अब आप जानते हैं कि मुझे जाती तौर पर एम्पलीफाइड क्लासिक का तर्जुमा बहुत पसंद है। उसमें लिखा है, ख्याल करो कि तुम्हें बाबरकत होना है। आपके जहन में ऐसे तरीके होने चाहिए कि आप बाइसे बरकत हो सकें। जी हाँ, इसे मकसद के तहत करें। हर रोज बैठकर सोचें कि आप किसी और के लिए आज क्या कर सकते हैं। जब आप बाहर जाएं और आपके आसपास लोग हों, और सोचें कि आपके आसपास कौन है। खुदा से पूछें कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं ताकि वो बरकत पाएं, या अगर खुदा आपके दिल में कुछ डालता है तो जब आप उनके आसपास हो तो उनकी तारीफ करें। उन्हें बताएं उनके पास क्या है, उन पर क्या अच्छा लगता है, या आपको उनके बालों का कलर पसंद है। कोई भी आप पर बरहम नहीं होगा कि आप उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। अमाल 20:35 में लिखा है, देना लेने से मुबारक है। अमाल 10:38 क्या कमाल का हवाला है। और देखें कैसे खुदा ने यसु नासरी को पाक रूह की अजीम कुदरत से मसा किया और वो निकलकर भलाई और शिफा के काम करने लगा उन सब में जो शैतान के सताए हुए थे, क्योंकि खुदा उसके साथ था। आज मैं आपको कुछ बताऊं कि आज हम में से कोई भी उठ खड़ा हो सकता है और जाकर भलाई के काम कर सकता है। इसी को अपना मकसद बना लें कि आज मैं बेड से उतर कर निकलूंगी और मैं यहाँ बैठकर खुद पर अफसोस नहीं करती रहूंगी।
میں شکایت نہیں کروں گی، مزاج کو چڑچڑا نہیں بناؤں گی کہ میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں. میرا من چاہا کچھ نہیں، میں بس جا کر اور لوگوں کے لیے باعث برکت بنوں گی. دیکھیں، ہر کسی کو ہی کلام کی زیادہ ضرورت ہے اور ہم یقینی بناتے ہیں کہ کلام کو آپ تک روزانہ پہنچائیں.